Good evening to all the students. Today in this class you will learn about the compound microscope. Okay, it is a microscope having magnifying power more than the simple microscope. Okay, just in case of simple microscope we learned that its magnification is maximum 9. Clear? So if we need the magnification more than that value, then we use this compound microscope. And this compound microscope is consist of the two lenses. The first lens is called the objective and the second lens is called the eyepiece. Clear? So objective and eyepiece, there are two lenses in the compound microscope, and both are having the small focal length and small aperture. But if we compare both of them, then the aperture and the focal length of the objective is small comparative to the eyepiece. Clear? So this arrangement, they do both the lenses are placed coaxially, means इनकी जो principal axis होगी that will be common, and the object will be placed object will be faced by the objective and the image will be seen from the eyepiece. Clear? So that's why it is called objective and eyepiece. So a good microscope or a compound microscope can reduce the magnification up to 1000. Clear? So that's why we design such a microscope to observe very tiny objects, we can say, which are at having the small distance like micrometer or 10 micrometer, etc. So to observe that objects, we use such kind of microscope. Clear? So write down the introduction of this compound microscope. A microscope which can magnify the image of an object up to 1000 times is compound microscope. It consists of, it is combination of two lenses, placed coaxially, named objective and eyepiece. Both have small focal length and small aperture. Focal lengths and small apertures. दोनों का ही focal length और apertures small होते हैं. But if we compare them, अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें, if we compare them, then objective has small focal length and aperture than eyepiece. यानी इन दो, वैसे तो दोनों की ही कम होती है, बट अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, if we compare them with each other, then the focal length of the objective is less and aperture is also less for the objective comparative to the eyepiece. Clear? The objective faces the object while image is viewed or seen from eyepiece side. इसलिए इनकी नेम को भी हमने ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस का है, इनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते.
आईपीस साइड। क्लियर? इनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते कि आप आई पीस की तरफ ऑब्जेक्ट रखो और ऑब्जेक्टिव की तरफ आई रखो, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, और उस समय ये टेलीस्कोप भी नहीं बनेगा। क्लियर? जनरली जो बाइनोक्यूलर्स होते हैं वो अलग उन कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। यहाँ ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसमें लेंस की फोकल लेंथ, एपर्चर, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। So take the screenshot. Now in the next slide we will first draw the diagram and find the magnification power of such a compound microscope in two cases. The first one when the image form at least distance of distinct vision. Okay, and the second case when the image formed at infinity, final image formed at the infinity. So इसमें हम फाइनल इमेज नाम देंगे। फाइनल इमेज का मीनिंग हो गया कि सेकेंड और फर्स्ट दोनों से मिलके जो इमेज बनी, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट इमेज भी बनती है बाय द फर्स्ट लेंस। क्लियर? सो दैट वर्क्स लाइक अ ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर द सेकेंड लेंस। सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। So first we discuss the case first. We draw the diagram for case first and then we move to the case second for infinite. At infinity the final image form. So write down case first. When final image formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision. Okay, so the diagram will be, this is the common principal axis. Try to use full page to draw this diagram. Here in the portrait mode. So this one is the first lens, which is the objective, and this one is the second lens, which is eyepiece. Okay, so as I told you earlier that its aperture will be less. This is the aperture, this is the linear aperture, the distance from this point to this point, and this is also the linear aperture. So objective का aperture कम होता है comparative to the eyepiece. So let this point is O and this point is E, and the object is placed in front of this object. So first let us take that this point is F naught. Here focal point है इसका objective का, and the image is placed here, sorry, object is placed here at this point. So we again take the two rays. First ray from parallel to the object and it will intersect the focus point of this objective and reaches to the E. So and the second directly towards the point O. So this is the first ray. After refraction it will pass through the focus point like this, and the second ray, which initially moving towards the optic center, will intersect the first ray. This is the intermediate image which formed here. Since the object is placed, this object is like AB, object is placed in between F and F naught, या sorry F naught and 2F naught, उन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है. So beyond 2F the image will form, beyond 2F, and it will be larger than the object size. इसकी जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट साइज से ज़्यादा होगी. Similarly these two are intersecting here, so I will draw it again. One ray which we are taking from the head of this A dash B dash will work as an image.
फॉर द ऑब्जेक्टिव सॉरी, इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज का काम करेगी. एंड द सेम इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस. दिस इज a dash b dash is the object for this eyepiece. So first ray we are taking towards this E point. Here it will pass without any deviation. ये without any deviation यहाँ से pass होगी. And the second ray which is parallel to E, it will refract from the eyepiece and pass through its focus point. ये इसके फोकस पॉइंट आईपीस के फोकस पॉइंट से पास हो. एंड इफ वी एक्सटेंड these two rays and even these two also, then all four will coincide at a common point here. Okay, so I am trying to coincide in them. The diagram is little bit complicated, so try to draw it. This is the final image which will form at this common point of intersection. This is the final image. So these four rays are coinciding if we extend them in backside, and then they all will form the image here. इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो एक चीज समझना कि ये इसकी जो इमेज है ये इसके पीछे बन रही है, यानी ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इसके फोकस पॉइंट और पोल के बीच में. हाँ, तो इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं होगा, एफ ई जिसको हम कह सकते हैं. दिस विल बी द फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ हम इसको ले सकते हैं. सो एफ ई विल बी, इसको कैपिटल कर दो. दिस इज कैपिटल एफ नॉट. डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. कई बार तो डायग्राम ही पूछा जाता है सीबीएसई पेपर में. सो दिस इज द एफ ई एंड इट विल बी एफ ओ. दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस for objective. This is the object distance for eyepiece, so it is UE. इसको हम UE कहेंगे. Then this is the image distance for objective, so it is VO. And this is the image distance for the eyepiece, and let it is D. और फाइनल इमेज जो बन रही है उसको हम कह सकते हैं. एंड इट इज ऑल्सो एडजस्टेड एट द लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, सो दैट द फाइनल इमेज फॉर्म एट डिस्टेंस डी, जिससे कि क्या हो, फाइनल इमेज कहाँ बने? डी डिस्टेंस के ऊपर बने. क्लियर? सो दिस इज द डी. हियर ऑल्सो वी टेक सम सेम डायग्राम जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में ड्रॉ किया था कि लेट द ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल एल्फा. This is the object AB. This makes an angle alpha at the least distance of the distinct vision, and this is the eye. Clear? Eyepiece की close रखते हैं हम eye को, इसलिए eyepiece और eye will be very close to this one. Here will be the eye. So again this is the alpha, and one more thing, the फाइनल इमेज जो यहाँ एंगल सबटेंड कर रही है ई पॉइंट पर, दैट विल मेक्स द फाइनल इमेज सबटेंड एन एंगल बीटा एट द आई. ओके, दिस एंगल इज व्हाट? इट इज द बीटा. सो अगेन वी डिफाइन द मैग्निफिकेशन बाय दिस वन बाय 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा और सिंपली बीटा अपॉन अल्फा, which is the angular magnification. Okay, so I hope I have drawn all the distances in this diagram, and this D is actually VE. इसको हम VE कहेंगे. eyepiece की जो image distance है that is VE, which is D. अब पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम आगे डेरिवेशन में यूज लेंगे. सो ऑब्वियस है जो लेफ्ट में उनको पॉजिटिव और जो राइट में उनको नेगेटिव हम ले सकते हैं. क्लियर? लाइक दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव. क्लियर? बट दिस वन इज पॉजिटिव. V0 जो होगा वो पॉजिटिव होगा यहाँ पर.
So write down some introduction. Let O and E, ऑब्जेक्टिव और आईपीस को अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. O and E are placed coaxially and an object AB placed near the focal point F naught as shown. The image formed by O is A dash B dash of height h dash. इसकी भी हाइट को मैं यहाँ पर h dash ले रहा हूँ. लाइक ऑब्जेक्ट हाइट है h, इमेज हाइट जो इंटरमीडिएट h dash एंड दिस इज h डबल डैश. और इसको हम नेम देते हैं a डबल डैश b डबल डैश. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस पर हम b पॉइंट लेते हैं. सो दिस इज a डबल डैश. इनको और पीछे एक्सटेंड कर सकते हो लाइक दिस. सो a डबल डैश एंड दिस पॉइंट इज b डबल डैश. तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी लेंथ्स हैं, बहुत सारी रेज हैं इस डायग्राम में. सो अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो कई बार तो 2 मार्क केवल डायग्राम के होते हैं. सो बहुत ध्यान से इस डायग्राम को ड्रॉ करना यूजिंग द स्केल, पेंसिल एटसेट्रा सो दैट यू कैन ड्रॉ ऑल दीज रेज वेरी केयरफुली. One more thing, you may get the diagram in some books where the final image formed in between this O and E. So that is also valid. Clear? Depending on the position of this object, initial position of object, we can vary this image position. So derivation में steps ध्यान रखना, main formula same रहेगा. Okay, that will not change. But the position of image may vary. Clear? So in most of the books, even in the NCERT, the image is given here. So I am referring that NCERT for this diagram. So height h dash and this a dash b dash works as an object for eyepiece या for E कर दो शॉर्ट में, for E. The final image, this is the introduction, a brief introduction of the diagram. A double dash B double dash is formed behind the object AB as shown. Okay, one more thing, that sometime the distance between the objective and eyepiece is taken as the length of this microscope, or the tube length is also called. जो माइक्रोस्कोप होता है ना, तुमने शायद लैब में देखा हो 11th क्लास में. सो माइक्रोस्कोप के दोनों एंड पर ये दोनों लेंसेज होते हैं. क्लियर? तो इसको हम उस माइक्रोस्कोप, इसको सिलेंड्रिकल ट्यूब में प्लेस किया जाता है. सो दिस लेंथ is called the length of the microscope, or we can say the tube length. Clear? तो इसको हम tube length या length of the microscope कह सकते हैं. L is length of microscope or tube length. Clear? Or called tube length. Various distances shown in figure. सबको हम यहाँ पर नहीं डिफाइन करेंगे. वेरियस डिस्टेंसेस आर शोन इन फिगर. द अल्फा एंड बीटा आर एंगल subtended at I. Alpha and beta are angles subtended at I by object and by object. अल्फा किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए. ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज. बट यहां अगर हम देखें रेस्पेक्टिवली, तो फाइनल इमेज
और इंटरमीडिएट इमेज, देखो दोनों ही एक ही एंगल सबटेंड कर रही है बीटा, है ना। इस डायग्राम में अगर देखोगे तो ए डैश बी डैश जो एंगल बना रही है ई पर वो भी बीटा है, और ए डबल डैश बी डैश जो एंगल बना रही है वो भी यहाँ पर बीटा है। तो लेकिन हम बोलेंगे इसको ए के फाइनल इमेज जो एंगल सबटेंड करती है आई पर दैट इज बीटा, एंड जो ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड कर रहा है आई पर दैट इज अल्फा। ये डायग्राम कैसे आया, देखो एक नॉर्मल आई के लिए, है ना, एक नॉर्मल आई के लिए ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हो, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं या नियर डिस्टेंस बोलते हैं, है ना, नियर पॉइंट जिसको मैंने बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो नियर पॉइंट पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो जो एंगल बनाएगा आई पर दैट इज द एंगल अल्फा। ओके, उसका इस डायग्राम में यूज है, बट ये अलग से इसको हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यूज लिया था और यहाँ भी हम इसको यूज ले रहे हैं। So that angle alpha is not shown here in this diagram. Clear? So take the screenshot fast. So now the magnification. The magnification is defined as, what is the formula for magnification, or even we say the angular magnification here. So it is beta upon alpha. So the beta and alpha are what? The angle subtended by final image at I for least distance ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। थोड़ी सी डेफिनेशन ज़्यादा है इसकी। डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय सेम द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, फाइनल इमेज एट आई, एंड इट इज ऑल्सो द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई for least distance of distinct vision। ठीक है, least distance of distinct vision होती कितनी है? 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई के लिए। least distance of distinct vision, ये जनरली हम इसके साथ में ऐड करते हैं इस लाइन को जब भी हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन पावर में एंगल्स की। सो दिस इज द एम, को मैं थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ। सो m इज व्हाट, दिस वन, और वी कैन से m इज बीटा अपॉन अल्फा। सो दीज एंगल्स वी हैव ऑलरेडी selected as beta and alpha, and they are also nearly equals to 10 beta upon 10 alpha। क्लियर? इनको हम क्या कह सकते हैं? 10 बीटा और 10 अल्फा के रेशियो की फॉर्म में ले सकते हैं। सो नाउ in triangle, we will find this 10 beta from this triangle E dash B dash E and ABE. So in triangle A dash B dash E and triangle ABE, so this 10 alpha, sorry, first 10 beta, it will be what? It is perpendicular upon base. 10 beta is perpendicular upon base. So perpendicular is what? It is A dash B dash upon base is what? It is B dash E, and A dash B dash is H dash, and B dash E is what? It is UE, H dash upon UE, और दोनों ही नेगेटिव है। देखो H डैश भी नेगेटिव होगा, UE भी नेगेटिव होगा, माइनस माइनस ले लो भले ही ये प्लस हो जाएंगे। So H dash upon UE, and similarly 10 alpha will be what? From this triangle it will be H, AB जो हाइट है उसको H ले रहे हैं हम, so it will be H upon D। क्लियर? और इसको भी एक बार वैसे लिख लेते हैं, AB upon BE। So AB upon BE is H upon D। And now if we put, therefore what will be M? M will be what? देखो दोनों की वैल्यू हम वहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो H डैश अपॉन UE
divided by h upon d, h dash upon ue divided by h upon d, then it will be what? It is h dash upon h into d upon ue. इसको हम क्या लिख सकते हैं? h dash upon h into d upon ue. And this is what? This is the basically magnification power, linear magnification by the objective. लिख सकते हैं ना? अगर मैं यहाँ देखो ये ट्राइंगल लेता हूँ ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल्स के एनी टू साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ अगर मैं h डैश अपॉन h लेता हूँ तो वो VO अपॉन UO के इक्वल होगा, है ना? VO, O फॉर ऑब्जेक्टिव, VO और UO के इक्वल होगा। तो इसको भी हम यहाँ पर VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE लिख सकते हैं। सिंस द ट्राइंगल्स ABO is similar with the triangle A dash B dash O। क्लियर? इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होने के कारण हमने क्या किया है? इसको h डैश अपॉन h को VO अपॉन UO लिखा है, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट का रेशियो इस हाइट और इस हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। अब बहुत ज़्यादा हम स्टेप्स को एनलार्ज नहीं करके लिखेंगे, इन शॉर्ट लिखेंगे। और वैसे भी तुम्हें पता है जो हाइट्स, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट होती है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाती है। क्लियर? सो दीज रेशियोज विल बी इक्वल हियर। सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। Now one more thing, and that is this VO upon UO can be written as MO, the magnification by the objective, और D upon UE। क्लियर? देखो D यहाँ इमेज डिस्टेंस है आईपीस के लिए और UE इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आईपीस के लिए। तो इसको D अपॉन UE को देखो, वे भी तो VE है ना, तो VE अपॉन UE भी हम क्या ले सकते हैं? मैग्निफिकेशन बाय द आईपीस। तो मैंने बताया था ना कि जब हम दो लेंसेज को या मोर देन टू लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो इन इट्स कॉम्बिनेशन द टोटल मैग्निफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो यहाँ भी ये दोनों इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं जब हम कोएक्सियली इनको प्लेस्ड करते हैं। So whenever two objects placed coaxially, then the total magnification is the product. Power product नहीं होती, power का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। क्लियर? तो वो स्मॉल डिस्टेंस d के लिए अलग फॉर्मूला आता है, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। तो वो हम यहाँ यूज नहीं लेंगे, बट यहाँ हम ये एक्सप्रेशन जरूर लिख सकते हैं। क्लियर? तो अपने पास में यहाँ पर इसकी वैल्यू है, इट इज VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। नाउ if we consider that eyepiece as eyepiece को अगर हम यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिडर करें तो इस D अपॉन UE को हम 1 प्लस डी अपॉन FE से लिख सकते हैं। उस दिन हमने फॉर्मूला डिराइव किया था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए कि D अपॉन UE इक्वल्स टू D 1 प्लस D अपॉन FE। जो मैग्निफिकेशन आता है सिंपल माइक्रोस्कोप का जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनती है, तो ये फॉर्मूला था ना 1 प्लस D अपॉन FE। ओके, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज ले सकते हैं, या फिर उसको डिराइव कैसे किया था, हमने थिन लेंस फॉर्मूला लगाया था फॉर दैट लेंस। So if we apply the thin lens formula for the eyepiece, then we can convert this D upon UE equals to 1 plus D upon FE। देखो मैं ट्राई करता हूँ एक बार, then एक बार तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं D upon UE is 1 plus D upon FE। क्लियर? बट इसको हम डिराइव कर सकते हैं since 1 upon FE equals to what? It is 1 upon
वी ई माइनस 1/UE। इसको हम d से मल्टीप्लाई करें और इसको इधर ले आए तो 1/UE आ जाएगा अपने पास 1/VE माइनस 1/FE। अगर हम यहाँ d से मल्टीप्लाई करें तो d/UE इक्वल्स टू d/VE और d खुद VE है, देखो यहाँ पर माइनस d/FE। तो अगर मैं यहाँ d को या VE को d को यहाँ पर VE कंसिडर कर लूँ तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और इस d को भी माइनस d अगर यहाँ पे लिख दोगे तो 1 प्लस d/FE आ जाएगा। क्लियर? इस d को भी एक्चुअल में हम माइनस d लिखेंगे यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी व्हाट, दिस फॉर्मूला विल बिकम्स d/UE इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/FE। ये प्लस ही होता है, ये प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना सिंस d इज नेगेटिव, क्योंकि फाइनल इमेज इधर बन रही है। क्लियर? फाइनल इमेज इधर बन रही है और कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए Fe को पॉजिटिव लेते हैं। फाइनल इमेज इधर बन रही है इसलिए हम इसको माइनस डी, मैंने डायग्राम में भी लिखा है, बट यहाँ इसको माइनस डी नहीं लिखा, मैंने इसको एक्चुअल में पहले VE से मल्टीप्लाई किया और फिर d पुट किया, ऐसे समझ लो। मैंने इसको पहले VE से मल्टीप्लाई करके फिर इसकी वैल्यू को पुट किया है। तो ये VE/UE है बेसिकली, जो 1 प्लस d/FE है, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था। तो वो डेरिवेशन एक बार देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये d/UE 1 प्लस d/FE कैसे आता है। वैसे इसको डिराइव करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइट डायरेक्टली कि फ्रॉम द थ्योरी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वी नो d/UE इज 1 प्लस d/FE। क्लियर? सो इफ वी पुट द वैल्यू हियर देन व्हाट विल बी एक्सप्रेशन, मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ। सो दिस विल बी व्हाट, इट इज m is equals to v0/u0 into 1 plus d/FE। थोड़े से स्टेप्स ध्यान रखना है इसमें। इफ, एक और कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे, अगर आपको VO UO गिवन नहीं है तो, इफ द ऑब्जेक्ट AB is placed very close to, एक कंडीशन है इसकी, very close to FO, यानी फोकस पॉइंट FO के पास में अगर इसको रखा जाए ऑब्जेक्ट को, very close to this one, then what will happen, then the image A', इमेज की हम बात कर रहे हैं, the image A', form very close to E, यानी आईपीस के एकदम क्लोज बनती है। तो अगर ये आईपीस के बहुत क्लोज बन रही है तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट UO इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज माइनस ऑफ FO एंड VO को यहाँ पर हम लिख सकते हैं L, जो कि इसकी ट्यूब लेंथ है ना, जो क्या है इसकी ट्यूब लेंथ है। तो मैंने ये कंडीशन लगाई है, देखो ये प्रैक्टिकली अप्लाइड है कि व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर FO, जब इसको हम FO के पास रखते हैं तो उस सिचुएशन में इसके कारण जो इमेज बनी A', वो कहाँ बनती है, वेरी क्लोज टू द आई पीस। सो वी अप्लाइड द कंडीशन UO इज माइनस FO एंड VO इज L। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो एक और फॉर्मूला हमारे पास में आएगा। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। So therefore this m will be equals to what, minus V0 L/F0 1 plus B/FE. This is the formula for magnification in this case when the final image form at least distance of the distinct vision. Clear? और इसी का अगर मैं केस सेकंड लूँ, देखो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, एक तो दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ चाहिए, दूसरा ये नोन होती है 25 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, तीसरा आपको दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो इफ़ यू नो द फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज जो हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर, तो उस सिचुएशन में उनकी फोकल लेंथ हमें नोन होती है।
हर लेंस की को पहचाना ही ऐसे ही जाता है कि व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। क्लियर? म्यू से हम नहीं पहचानते, बस उसकी फोकल लेंथ है। आप मार्केट से परचेज भी करते हैं जब लेंस, तो वो यही पूछता है कि किस फोकल लेंथ का लेंस हमें चाहिए। क्लियर? सो फोकल लेंथ इज नोन फॉर द बोथ लेंसेज एंड कैपिटल एल सेपरेशन कितना रख रहे हैं वो भी हमें पता है। तो तीनों चीजें हमारे लिए नोन है, उसकी टर्म में हमने ये मैग्निफिकेशन लिखा है। हम उस लेंस के या माइक्रोस्कोप के सेंटर में जाके ये वी नॉट यू नॉट कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। यू नॉट तो चलो फिर मैं बता दूंगा, लेकिन वी नॉट जो इन दोनों के बीच में है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, यू ई जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में था उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, है ना, मैनुअली जब हम कैलकुलेशंस करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव कन्वर्टेड दिस फॉर्मूला in the situation or in the terms of focal length and the tube length. Clear? So remember this formula for this case when the final image is formed at least distance of the distinct lesion. Now we will do the case number second when final image formed at infinity. Final image formed at infinity. So nothing you have to do. कब बनेगी? देखो इन्फिनिटी पे इमेज बहुत इजी है, जब ये a डैश b डैश इस एफ ई पर आ जाए। इस लेंस के ऑब्जेक्ट अगर फोकस पॉइंट पर हो तो हम कहेंगे ना इसकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा, है ना। इन्फिनिटी की कंडीशन क्या है? एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस पॉइंट विल फॉर्म द इमेज एट इन्फिनिटी। Clear? So this happen when the object a dash b dash for eyepiece E situated at its focus point, then the final image will form at इंफिनिटी। यही होगा ना। तो इसके लिए यू ई कितना हो गया? देखो यू ई इज इक्वल्स टू एफ ई एंड द सेकेंड थिंग दैट वी ई विल बिकम्स इंफिनिटी। यहाँ पर ये जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बन रही है? इंफिनिटी पे बन रही है। तो इसी डेरिवेशन में जो अभी हमने किया है, उसी डेरिवेशन में हमने अभी लिखा था 1 प्लस डी ई सॉरी d अपॉन यू ई को हमने लिखा था 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। वहाँ यू ई की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, इट विल बी d अपॉन एफ ई, है ना, सिंस यू ई इक्वल्स टू एफ ई है। यहाँ पर यू ई डायग्राम में मैं चेंज करूंगा, द डायग्राम विल नॉट बी सेम हियर इन दिस केस, these all rays will become parallel and this will be the focus point. This will be the focus point FE. ठीक है, ये वाला पॉइंट जो होगा ये FE बन जाएगा, जिसको हम B डैश कह रहे हैं। Here this is A dash B dash and all the rays become parallel to each other. Here ये जितनी भी रेज हैं ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। Here will be the object, sorry, final image formed at infinity. ये भी डैश लाइन से बनाओगे इसको भी। Here it will be from dashed line and at infinity the final image will form. Okay, so these all are parallel. So this is the case. बस एक चेंज जो करना है, एक तो ये चेंज करना है कि b डैश f पर ले लो, और दूसरा चेंज करना है इन सबको पैरेलल कर दो। ठीक है, शो दैट ऑल दीज आर पैरेलल, सो दे विल फॉर्म द इमेज एट द इंफिनिटी। तो इसमें डेरिवेशन में क्या चेंज होगा? देखो यू ई डायरेक्ट एफ ई के इक्वल हो गया, है ना, यू ई डायरेक्ट एफ ई के इक्वल हो गया। और सेकंड डी अपॉन यू ई को हम डायरेक्ट डी अपॉन एफ ई लिख देंगे, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई नहीं लिखना है, इसे ध्यान रखना, इसको अब यहाँ 1 प्लस नहीं लिखना है। So this implies what will be the magnification? The magnification will be जो फॉर्मूला हमने लिखा था माइनस एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। दिस इज द मैग्निफिकेशन। यहाँ पर ये 1 प्लस वाला फैक्टर नहीं आएगा,
It is direct minus L upon F naught D upon F. So this is the case when final image. कई बार आपको डायरेक्ट यही केस पूछा जाता है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. तो आपको इसके एक्सप्रेशंस नोन होने चाहिए कि हमने फर्स्ट केस में क्या किया. तो नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स. क्लियर? सो रिमेंबर द डायग्राम इन एंड दिस फॉर्मूला. अगेन ये एल एफ नॉट एफ ई की टर्म में ही है. क्लियर? सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट.